Hello everyone, welcome back to the channel. Today we will continue with the topic resource planning. Now a question arises, why do we need resource planning? Well, as we know, to achieve any goal, we need proper planning. The same way, for the judicious usage of the resources, we need a plan. So India is a very rich country. We are having lots of natural resources. And as we know, resources satisfy the needs of the human being and they are limited in quantity and they are unevenly distributed everywhere. So for the proper usage and for keeping it for the future generation and for its sustainable development, we need to plan it. So there are so many steps involved in it. Let us see. So as I asked you, resource planning is an accepted strategy for the judicious use of the resources. Especially it is needed in a country like India, where is a huge diversity in the availability of the resources. Some regions and some states of India are self-sufficient in terms of availability of natural resources. Some states are having some natural resource in plenty and certain resources are in deficit. They are not at all found there. Some areas are facing the acute shortage of some vital natural resources. So when this is the condition, we need proper planning. You are seeing the map of India. If we take the example of minerals only, these all states are having minerals. अब आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इस पूरे एरिया में मिनरल्स पाए जाते हैं, दूसरे रिसोर्सेज नहीं पाए जाते और बाकी सभी स्टेट्स में और इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं. लेट अस सी, दीज आर द मिनरल बेल्ट्स. छोटा नागपुर प्लेट्यू, दिस इज छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश एरिया. देन इफ वी गो टुवर्ड्स अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में फॉसिल फ्यूल्स के बहुत भंडार पाए जाते हैं. Their water is in plenty, in abundance, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो वहां पर उतना डेवलपमेंट नहीं है. रोडवेज और रेलवेज के नेटवर्क के हिसाब से देखें तो उस तरह से भी वो पूरे देश से अच्छे से कनेक्टेड नहीं है. तो कुछ चीजें प्लेंटी में पाई जाती हैं और कुछ चीजें वहां पर बिल्कुल नहीं है. तो दिस वे, इफ वी गो टुवर्ड्स एग्जैक्टली इन द वेस्ट, इन द राजस्थान, it is having lots of potential of solar energy and wind energy, but it's the hot one, it is a hot desert. और अगर हम पूरे देश के नक्शे में देखें तो राजस्थान, गुजरात और पूरी वेस्टर्न कोस्ट पर विंड एनर्जी का बहुत स्कोप है and we have developed lots of windmills and wind farm और wind energy भी वहां पर जनरेट हो रही है. बट इन एरियाज में बाकी दूसरे रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं. और अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो आप देख रहे हैं नॉर्थ इंडिया में एग्रीकल्चर का बहुत स्कोप है बिकॉज ऑफ इट्स फर्टिलिटी ऑफ द लैंड एंड द सॉइल एंड दिस इज नोन एज द फुटबॉल ऑफ द होल कंट्री. पूरे देश को वीट और राइस इस एरिया से ही सप्लाई किए जाते हैं. और अगर हम असम की बात करें so tea is grown there, but the whole country is consuming. So this way we are having diversified availability of our natural resources. So in that case, resource planning is required, is must. So resource planning is done in following stages. First is we need to identify the resources. Identification and inventory of resources by सर्वेइंग एंड मैपिंग. हमें कुछ उन एरियाज का सर्वे करके और मैपिंग करके पहले ये पता लगाना होता है यहाँ पर कौन सा रिसोर्स पाया जाएगा, कितनी क्वांटिटी में और उसकी क्या क्वालिटी होगी और उसका मेजरमेंट कितना होगा. सो दिस स्टेज इज नोन एज identification and inventory of resources
by surveying and mapping. Second stage comes evolving a planning structure. अब हमें ये ज्ञात हो गया कि यहाँ पर ये वाले रिसोर्सेज पाए जाते हैं इतनी क्वांटिटी में और ये उनकी क्वालिटी है, तो उसके बाद हमें प्लानिंग स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है. रिलेटेड टू दैट टेक्नोलॉजी शुड बी देयर, टेक्नोलॉजीज शुड बी देयर, उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी देयर, इंस्टीट्यूशनल सेटअप शुड बी देयर, और उसको हम किस तरह से उपयोग में ला पाएंगे, तो सेकेंड स्टेप वहां पर आता है. देन थर्ड स्टेप्स कम. It should be matching the resource development plans with the overall national development plans. आप जानते हैं कि 1950 में in India we were having planning commission. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5-year प्लानिंग शुरू किया था. अब अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए तो इन्होंने 2015 में नीति आयोग की घोषणा की. तो नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. तो वो हमारे देश में सभी डेवलपमेंटल पॉलिसीज बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और उस सबका लेखा जोखा रखते हैं. तो हमारी जो भी प्लानिंग है वो हमारी उस नेशनल प्लानिंग से सिंक्रोनाइजेशन में होनी चाहिए और उसके साथ मैचिंग होनी चाहिए. अगर ये सब चीजें हम कर पाते हैं तो वी आर डूइंग द प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग. जैसा कि आप देख रहे हैं, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इट इज डन थ्रू आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री. मैपिंग हो रही है यहाँ पर कि कहाँ कौन से रिसोर्सेज है, इस तरह से सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं. फिर उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल सेटअप, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वो डेवलप की जाती हैं आसपास के एरियाज में कि जहां पर वो हम प्रॉपरली उनको यूटिलाइज कर पाए. फिर वो नेशनल प्लान्स के साथ प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन में होने चाहिए और वो प्लान हमारे देश की प्लानिंग के साथ मैचिंग होने चाहिए. आई होप यू आर क्लियर विद द प्लानिंग, why it is necessary and which are the necessary steps. Now we will talk about the conservation of resources. Resources को conserve करने की जरूरत क्यों? Why we need to conserve these resources? जैसा कि हमने पहले कहा, resources limited quantity में है और हमारी population ever growing है. So limited resources को proper planning के साथ और कंजर्वेशन की सहायता से ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकते हैं. वी कैन अटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. व्हेन आई से सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस वी कैन यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज विद प्रॉपर विजडम एंड कीप इट फॉर फर्दर जनरेशंस फॉर देयर यूसेज. सो फॉर दैट कंजर्वेशन इज एसेंशियल, इट इज रिक्वायर्ड. सो व्हाई? Because people are using irrationally. Irrational consumption is happening and over-utilization of resources is happening. अब आप एक साधारण सा एग्जाम्पल लें. अब किसी फैमिली के पास एक फ्लैट है तो उनको दूसरा चाहिए, हर बच्चे के लिए अलग चाहिए. अगर घर में एक 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, तो जितने भी घर में मेंबर्स हैं फैमिली में सबके लिए अलग अलग 2 व्हीलर होना चाहिए. तो यहाँ पर हम अगर जरूरतों की बात करें तो हमारे देश में इतने संसाधन हैं, इतने रिसोर्सेज हैं कि सभी की जरूरतें आराम से पूरी हो सकती हैं. लेकिन जहां हम ग्रीड की बात करें, कि उनके लोभ और लालच की बात करें, तो ग्रीड तो किसी की भी पूरी नहीं हो सकती है. तो हमारे थिंकर्स, स्कॉलर्स और स्पेशली महात्मा गांधी जी ने इस पर बहुत चिंता जताई और बोला कि हमारे देश में वी आर हैविंग इनफ रिसोर्सेज, sufficient resources for everybody's need, not for the greed. Everybody's needs can be satisfied. We have enough resources, but we don't have resources to satisfy anybody's greed. So ये एग्जाम्पल के साथ हमने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया. और उसके बाद एक और बात उन्होंने कही, दिस वाज मास प्रोडक्शन हो रही है हमारे कंट्री में, आधुनिकरण हो रहा है. मॉडर्नाइजेशन के नाम पर मॉडर्न मशीन्स के द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं. दैट इज नोन एज मास प्रोडक्शन. बट ही वांटेड प्रोडक्शन बाय द मासेस, मींस एम्प्लॉयबिलिटी शुड बी इंक्रीज्ड. ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम करने का मौका मिले, लोग प्रोडक्शन करें, ना कि मशीनें लोगों के लिए प्रोडक्शन करें. सो वेरी एप्टली महात्मा गांधी shared his views on production by the masses. This is need of the hour, and this way we have to conserve our resources for our future generation.
Thank you very much. I hope you are clear with this topic. Stay tuned for the next topic. Thank you.